Now that 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। जब हम बचपन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तब अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, जो हमको सिखाना चाहते हैं बाय डूइंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज ऐसे ही मत पढ़ो, सबसे पहले आप ये पढ़ो, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है पूछ क्या रहा है, क्या चाहता है आपसे, ठीक है। ये आपको बताएगा कि आपको इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए या ऊपर से कर्सरी पढ़ना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला, दिस इज सोनिया आहूजा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, किस तरीके के सवाल आते हैं, व्हाट आर द एग्जामिनर्स ट्राइंग टू असेस यू ऑन आरसी के क्वेश्चन यूज करके, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड सम ट्रिक्स जिससे आप आरसी के क्वेश्चन बेटर सॉल्व कर सकते हैं, एंड आल्सो द ट्रिक्स दैट द एग्जामिनर यूजेस इन द क्वेश्चंस टू कंफ्यूज यू। All of that, plus we are also going to solve some RC questions to get an idea. So let's move on. Before that, now that 2023 के results आ चुके हैं, first of all I would like to congratulate all the aspirants जिन्होंने exam clear किया है exam. I hope that the life ahead is just as magical as you had imagined it was when you were an aspirant. Best of luck for your future. Those who did not clear it this year and have more attempts left, this is the time when you forget what has happened last year and you start anew. Every time jab bhi aap exam देते हो, you get a little better. Okay, so learn from what has happened and move on. This is the time you get back into your spirit for the pre. There are also going to be some students if you इस साल शायद after your debut house. And I just want to tell you, ऐसा लगता है जब आप desperate होते हो कि life revolves around this one exam, and you have imagined yourself doing this for the rest of your life, and it seems to have ended like this. But society में जो सबसे महान लोग हैं, सोसाइटी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है, अच्छे जनरेशन में, they were not all citizens. They were musicians, actors, artists, even politicians, as well as businessmen. You can still make the difference that you imagined you would have made it for a citizen. There's always a place in society for good people, for educated people. And finally for the younglings जिन्होंने 2023 में पहली बार यूपीएससी एग्जाम दी थी या 2024 में पहली बार देने वाले हैं, for you guys we have foundation course Sankalp 2016 just for 11,999 in either two languages, English or pure Hindi, and this batch is a complete set for prelims, mains as well as interview preparation. The batch for the 26 for English will start on 15th April and Hindi will start on 27th April. What all are we going to cover? What are the features of this course? Live or recorded दोनों तरीके की क्लासेस अवेलेबल है। 3 सेट की क्लासेस अवेलेबल होंगी, वीकली करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग क्लासेस, daily MCQs and mains questions so that you're solving them continuously, and regular doubt sessions to solve your queries. So all of this will be included in Sankalp 2026. If you want to know more about this, please click on the link given. Now let's start with reading comprehension. क्या होता है reading comprehension? I remember second या third class से हमें इंग्लिश में पढ़ाना चालू कर दिया था reading comprehension. It was a very simple thing. 4 सेंटेंस होते थे, नीचे क्वेश्चन पूछा होता था, you have to answer them. ये fill in the blanks होते थे. One of the most fun activities I feel being a member of learning the language, right? So how is it that something जो बच्चों को इतने छोटे बच्चे से सिखाया जा रहा है उसको यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, something we all should be very good at, right? And clearly UPSC exam is not about being good at something, right? वो तो चाहते हैं बहुत कठिन एग्जाम हो, right? तो ऐसा क्यों है कि reading comprehension level? In reality, there are 3 main aspects of prelims: your logical reasoning, your quant, and your reading comprehension, your language. Right? अब trick ये है कि you have to be good at least 2 of them to be able to clear your prelims. So if you are not good at logical reasoning or mathematics like that, general mathematics, then you must focus on RC. Because RC can be very forgiving, but at the same time this is also the one that takes the most time to solve. तो ज़्यादा समय भी इसी में लगता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो सारे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट का जितना भी टाइम बचता है देन दे फोकस ऑन आरसी. हर साल 20 से लेकर 24 क्वेश्चन के बीच में आरसी के आते हैं, एंड
इवन दो आरसी समथिंग जो हमने बचपन से किया हुआ है और स्कूल में बहुत पहले से आरसी कराना चालू कर देते हैं, यूपीएससी के आने वाले आरसी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी डिफरेंट. ओके, वन ऑफ द की डिफरेंस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. लाइक जब हम बचपन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, तब अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, जो हमको सिखाना चाहते हैं by doing the reading comprehension is ability to understand English language. इंग्लिश लैंग्वेज में 4 शब्द लिखे हैं, उनको पढ़कर समझकर जवाब दो क्वेश्चन का, ये उसका बेस होता है. बट व्हेन यू कम टू यूपीएससी, दैट्स नॉट व्हाट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर फॉर. क्या चीज है जो रीडिंग है, क्या एबिलिटी है जो आरसी बेसिकली आरसी के थ्रू असेस करना चाह रहा है एग्जामिनेशन. इट्स योर वोकैबुलरी प्लस योर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इट. दिस इज कॉमन. ये हमेशा से आरसी में का ही रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, बचपन से कि क्या आप एक टेक्स्ट को पढ़कर कुछ समझ सकते हो. बट दिस इंक्लूड्स a very good vocabulary and use reason and logic to come to conclusion. This is where RC is different from RC of schools or colleges. UPSC में जब RC reading comprehension आ रहा है, you are not going to find, very rarely you are going to find direct answers. Okay, it's about कि जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर क्या समझा और उसमें अपनी लॉजिकल रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग लगा के क्या कंक्लूजन पे आप आ सकते हो. दैट is what they're trying to understand in art. So this does not include knowledge of the subject. आपने नोटिस किया होगा कहीं पे भी इसमें सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं जानने की कोशिश कर रहे हो. मतलब आरसी किसी भी टॉपिक से किसी भी बारे में हो सकती है, एंड इट डजंट मैटर भले आपको वो केमिस्ट्री के बारे में हो या बायोलॉजी के बारे में हो या सोशलॉजी के बारे में हो. इट डजंट मैटर कि टॉपिक क्या है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ये नहीं देखना चाहता कि आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज है या नहीं. वो ये देखना चाहते हैं कि अगर गिवन द नॉलेज, अगर आपको मैं नॉलेज दूं तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, जब आप एक let's say you're becoming an IAS officer, you are going to deal with problems that probably before this you were not aware of, right? हो सकता है आपकी जिंदगी में आपने कभी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स फेस ना करी हो, या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं थी. जहाँ आप रहते ना बचपन से, वहां ये इशू नहीं था. ठीक है, तो जब आप मान लो किसी नई जगह पे जाओगे एंड देन यू will be asked कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो, and then you will be given information that you probably have no idea about, but you have to read it, understand it, not by what you know but by what is written. आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछी जा रही है, जिसने लिखा है, जिसे पता है ऑथर राइटर, उसकी अंडरस्टैंडिंग को आपको समझना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाओगे, हर इंसान कितना भी वो पढ़ ले, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप नहीं पता होगा या जो आप कभी एक्सपीरियंस नहीं करा लाइफ में. तो ये एक एबिलिटी है जो ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो अगर उस सिचुएशन में नहीं भी पढ़ा है तो उसके पास एम्पैथी हो, एथिकल अंडरस्टैंडिंग हो, कि वो कुछ किसी और का पर्सपेक्टिव समझ के कंक्लूड कर सके. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी. कि वोकैबुलरी इन द सेंस कि क्वेश्चंस की क्या वोकैबुलरी है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें ज्यादातर ये वर्ड यूज किए जाएंगे 5. ठीक है, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी वो आपसे पूछने की क्या कोशिश कर रहा है. तो टू अज्यूम जो मतलब क्या होता है, तो अज्यूम मीन्स कि आपने मान ली कोई बात कि ये बात सही है, द थिंग जिसकी बात कर रही है आपने अज्यूम किया वो सही है, लेकिन प्रूफ नहीं है. ठीक है, तो मैं आपको बोल रही हूं कि आज कल बारिश पड़ी थी, ठीक है, आपने मेरी बात मान ली, लेकिन ना मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कहा से मुझे पता चला कि बारिश पड़ी थी, ना आपको कोई आइडिया है कि बारिश कहाँ पड़ी थी. आप अज्यूम कर रहे हो कि मैं सही हूँ, आप मान रहे हो कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तब उसे अजम्पशन कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज कंक्लूजन. अब जब आप किसी चीज को राइट मानते हो गिवन द प्रूफ, तो उसे कंक्लूजन कहा जाता है. ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है उस चीज को मानने का तो वो अजम्पशन होगा, प्रूफ है तो कंक्लूजन होगा. ओके, क्रक्स या जिस्ट बेसिकली क्या होता है ना, कभी कोई भी राइटिंग होती है ना, वो इस तरीके से लिखी जाती है. एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट रहती है, ठीक है, ऑथर का उसके ऊपर एक आइडिया रहता है, और फिर उसके बाद ऑथर क्या करता है उसमें एग्जाम्पल देता है, अनियन की तरह दिखता है ये बेसिकली. वो ये एग्जाम्पल देता है अपनी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ठीक है, कि जैसे मैंने बोल दिया कि आई बिलीव कि all birds have eyes, all birds have feathers that have colors that we can't see.
ठीक है, तो आफ्टर दिस माय सेंट्रल आर्ग्यूमेंट मैंने कहा कि एक्चुअली में हाँ इंसान बहुत सारे रंग नहीं दे सकते हैं और इसीलिए हमें बर्ड्स जो है ठीक से नहीं दिखती है, देयर इज अ होल टुगेदर देयर रिचुअल्स दैट वी डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज वी कांट सी द कलर। उसके बाद मैं आऊंगी, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, बताइए ये वाला पक्षी इससे ऐसा कलर, ये वाला पक्षी ने ऐसा करा, आपको ये साइड इससे बताया, ये पक्षी, तो ये तो मैं दे रही हूँ आपको एग्जाम्पल। मेरा सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, मेरा सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जिस्ट क्या है कि देयर आर थिंग्स वी डोंट नो अबाउट बर्ड्स, तो दैट इज द क्रक्स और जिस्ट। टू इम्प्लाई और इम्प्लीकेशन, टू इम्प्लाई बेसिकली मीन्स कि मान लो कोई चीज है जो एक्सप्लिसिटली नहीं दी हुई है, मतलब ऑथर ने डायरेक्टली ये नहीं बोली है लाइन कि भाई सारी चिड़िया जो होती है उनके पास एक अलग रंग होता है इसलिए हमें उनकी सोशल लाइफ के बारे में नहीं पता है, ऑथर ये नहीं बोला है। पर ऑथर ने जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स दी है ना उसके बेसिस पे आप इम्प्लाई कर सकते हो कि ये ऑथर कहना चाह रहा है। When you're trying to say conclude something that the author has not said it, ऑथर ने एग्जैक्टली ये शब्द नहीं बोले हैं, पर जो भी ऑथर ने बोला है उस सब को देखते हुए आप उस कंक्लूजन पे आए। एंड वही टू इन्फर या इन्फरेंस का क्या मतलब होता है कि यू हैव कम टू द कंक्लूजन, आप कंक्लूजन पे आए हो विथ द प्रूफ गिवन बाय द ऑथर। ऑथर ने जो बोला है उसी के बेसिस पे, ऑथर ने जो एविडेंस दिया है उसी के बेसिस पे जब आप कंक्लूजन करते हो तो उसे इन्फरेंस कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या होगा, जब आपको आरसी दिया जाएगा तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देने के बाद वो आपको पूछेंगे कि बताओ इसमें ऑथर ने क्या अज्यूम किया है, बताओ इसकी जिस्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, क्या किस तरीके से मतलब क्या इंप्लाई करना चाहता है ऑथर, क्या इन्फर करना रहा है ऑथर, इस तरीके के सवाल आएंगे। तो आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग की व्हाट डज इट मीन टू इन्फर, व्हाट इट मीन्स टू इम्प्लाई, व्हाट इट मीन्स टू कंक्लूड, व्हाट इट मीन्स टू अज्यूम, एंड व्हाट डज द वर्ड क्रक्स, जिस्ट हियर प्रीफेस भी बोला जाता है कभी कभी, मेन पॉइंट, व्हाटएवर दीज वर्ड्स आर। तो ये इनकी मीनिंग बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि सवाल क्या पूछ रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब चलते हैं कुछ टाइप्स पर। 4 मेन टाइप होते हैं, यूजुअली हमने यूपीएससी में देखे हैं, मतलब जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो आप 4 में डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर किस तरीके का सवाल पूछा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज अजम्पशन ऑफ द ऑथर। इसमें क्या होता है, आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि अच्छा अब बताओ कि इसमें कौन सी चीज है, नीचे दी हुई 4-5 सेंटेंस दिए होंगे, 3 या 4, कौन सा इसमें से अजम्पशन है जो ऑथर ने लिया है, मतलब कि क्या चीज है जिसका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी ऑथर ने उसको राइट मान के अज्यूम करके ये बात कही है, तो वो होते हैं अजम्पशन। द आंसर इज इन दिस केस इज नॉट डायरेक्टली इन द पैसेज ऑब्वियसली, क्योंकि अजम्पशन की बात चल रही है और वो भी ऑथर के अजम्पशन की, तो ये इसका आंसर डायरेक्टली पैसेज में नहीं होगा। आपको पैसेज को पढ़ के समझना होगा कि क्या चीज है जो ऑथर ने पहले से मान रखी है, उसके बेसिस पे उन्होंने ये लिखा है। एस्पिरेंट्स नीड टू रिमूव देयर थॉट्स। अब एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑथर के असम्पशंस है, आपके नहीं, ठीक है। आप जब भी आरसी पढ़ो तो अज्यूम मत करो कि इस धरती पे हो रहा है, आप अज्यूम करो कि ये किसी और धरती पैरेलल यूनिवर्स पे हो रहा है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि द मोमेंट अगर किसी ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में आपको बहुत नॉलेज है ना, आप सडनली आपका ऑथर का अजम्पशन आपका अजम्पशन बन जाएगा। तो हमेशा जब भी आप आरसी पढ़ते हो भूल जाओ, आप जो भी हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो रहा है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, तो जितना नॉलेज है जो नहीं दिया है उस कॉम्प्रिहेंशन में, उस पैसेज में, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, व्हाटएवर इज गिवन इज ट्रू, व्हाट इज नॉट गिवन डजंट एग्जिस्ट एंड ऑटोमेटिकली इज रॉन्ग। Okay, aspirants need to remove their thoughts and this will really have an impact on your correct answer अगर आपने अपने thoughts को इंटरप्रेट करने दिया, ठीक है। और you are trying to understand the world from author's point of view, आप ऑथर का पर्सपेक्टिव, जो ऑथर है जिसने उसको लिखा है उसका, उस राइटर का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी दुनिया देख रहा है। ये दुनिया आप नहीं देख रहे हैं, ऑथर देख रहा है, उस पर लिख रहा है, आपको ऑथर की राइटिंग समझकर ये जानना है कि वो जो वर्ल्ड देख रहा है वो कैसा दिखता है ना। तो इसमें कुछ भी मत अज्यूम करना, जो आपका नॉलेज है वही सच है जो ऑथर ने लिखा है, वरना वो सच नहीं है। इफ इट्स नॉट गिवन देन इट्स नॉट ट्रू। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पता क्या होगा, हो सकता है कि जो ऑथर है एट द एंड ऑफ द डे, देखो हम सब वी आर ऑल स्लाइटली रॉन्ग समवेयर, राइट। तो हो सकता है कि ऑथर का व्यू थोड़ा सा स्क्यूड हो या नैरो हो, राइट। हो सकता है ये ऑथर किसी ऐसे पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल
फेमिनिस्ट मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो कहेगी नहीं, आई तो बिलीव कि ऑल मेन आर वीक बिकॉज आई हैव सीन दैट। तो ऐसे में आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि whether you think men are weak or women are weak, right? What you are trying to understand is कि ऑथर क्यों बोल रहा है, भले उसका व्यू भले skewed हो, भले नैरो हो, पर ऑथर क्यों ऐसा बोल रहा है ये समझने की कोशिश करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत लेके आओ इसको सॉल्व करने के। एक एग्जाम्पल देखते हैं। You can pause here and read this passage. I will just quickly go through it because I have already read this passage, so I'm just going to tell you कि इसमें बात की जा रही है कि कैसे जीडीपी अब एक बहुत कॉमन चीज बन गया जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो आप जब इसको पढ़ो यू विल कम टू दिस लाइन, टुडे जीडीपी हैज अज्यूम्ड सच अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट। क्योंकि वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है assumption have been made। सवाल देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई क्या assumption बनाए गए हैं और आपको पैसिव में अज्यूम वर्ड दिख रहा है। तो इसको पढ़ो, नीचे की दोनों लाइन पढ़ो एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जीडीपी ऑलमोस्ट लोग इतना सिग्निफिकेंट प्लेस ले रही है कि लोग जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो टॉक अबाउट जीडीपी। तो क्या दो सेंटेंसेस है, राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर द कंट्री टू बी डेवलप्ड कंट्री, राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड। क्या चीज इसमें अज्यूम की गई है फॉर द राइटर टू से, कहीं पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात हो रही है? नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर जस्ट टॉकिंग द फैक्ट कि जीडीपी जो है वो कंट्री की डेवलप है उसका एक मार्कर बन चुका है। तो दिस वे यू कैन सी दैट ओनली वन इज करेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट। तो ए would be the correct answer because only one has been assumed. Second one is not something that हमें पता है ये चीज, we know कि जनरली ये अंडरस्टैंडिंग है कि जीडीपी गारंटी करता है कि रीजनेबल हो, लेकिन ऑथर यहाँ पे नहीं बोल रहा है। ऑथर बस यही बोल रहा है कि जीडीपी इज सिनोनिमस टू नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एनी वे। ठीक है, सो हेंस दिस विल बी द आंसर। यू कैन पॉज एंड रीड हियर दैट देयर इज आल्सो द रीजनिंग व्हाई, देखिए क्यों ये ऑप्शन सही है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कभी कभी यहाँ पे ना क्वेश्चन इस तरीके आ जाता है, व्हाट assumption have been made, what assumption can be made। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखनी है कि अगर वो पूछ रहा है कि क्या assumption, what assumptions have been made, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि ऑथर ने क्या assumption बनाया, और अगर वो आपसे पूछ रहा है कि what assumption can be made, now they are asking your opinion, आपको क्या लगता है कि क्या, तो यहाँ पे whether it said have or can, ठीक है। नाउ दिस इज वेयर यू डिफरेंशिएट वेदर यू आर गोइंग टू यूज योर ओपिनियन और नॉट। अगर हैव बोला है तो आप अपना ओपिनियन यूज नहीं करोगे, कैन बोला है देन नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि तुम्हें क्या लगता है। ठीक है, तो यहाँ आप अपना ओपिनियन डाल सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन। एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन से सिंपल, जो हम बचपन में करते थे ना स्कूल में सॉल्व, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दी होती पैसेज में, यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन। बेस्ट तरीका वुड बी टू रीड द क्वेश्चन then to read the passage, and जहां पे भी आपको लग रहा है वहां मार्क कर दो, come back to the question, understand what is being asked, go back to where you have marked in the passage and go understand कि क्या बोला गया है और क्या पूछा गया है and take them, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे यूजुअली जो ट्रिक होती है ना वो डिटेल्स में होती है, क्वेश्चन में ट्रिक होता है। जब भी आपको कोई डायरेक्ट एक्सप्लिसिट पैसेज मिल रहा है कि जिस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे पैसेज में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन ट्रिक है। ठीक है, याद रखना, अगर कभी कभी पैसेज ट्रिकी होता है, कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी होता है, तो यू हैव टू कीप आई ऑन द डिटेल्स, राइट। सो ये एग्जांपल है, अगर यू कैन पॉज हियर एंड रीड दिस, आई हैव ऑलरेडी रेड इट, आई जस्ट टेल यू द जिस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर। So this passage is basically talking about maple syrup, क्योंकि अमेरिका की इन स्टेट्स में वर्मोंट, न्यूयॉर्क एंड क्वेबेक कनाडा में प्रोड्यूस किया जाता है। व्हाट इज, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, कब बेस्ट रहता है, कहाँ का बेस्ट रहता है, क्या क्वालिटी रहती है, क्या किया जाता है उसके साथ, ये सब इसमें किया हुआ है। अब आप यहाँ पे आओगे, ये पैसेज को एक कर्सरी आपने पढ़ लिया, एक बार मोटा मोटा पढ़िए, लेकिन फिर आप पूछो कि सवाल क्या पूछा है। ठीक है, डिटेल में मत पढ़ना, क्योंकि ये पहले पढ़ो कि पूछ क्या रहा है आपसे, फिर जाके पढ़ो। अगर यहाँ पे assumption बोल रहा होता है, कंक्लूजन बोल रहा होता है, इंफर इंडिकेटर होता है, देन यू कुड हैव रेड इन डिटेल, बट यहाँ पे वो डायरेक्ट बोल रहा है कि सीधे सीधे पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर सैपिंग। तो अब जब आपको पता है कि वो ये पूछा, तो यू कैन गो बैक ऑन दिस and just कहाँ पे आपने सैपिंग के बारे में पढ़ा, you come here tree at the end of winter and in the early spring। ठीक है, आपको पता चलता है यही करेक्ट आंसर है, that would be end of winter early spring, A is the correct। These are the kind of questions जिसमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि जल्दी ले सकते हो, बट हमेशा ना ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से पढ़ना नहीं वाला, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कभी कभी वो नेगेटिव्स भी दे देते हैं।
मतलब क्या पूछेंगे, इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू कि व्हाट इज द मोस्ट आइडियल पीरियड फॉर सैपिंग, दे कैन आल्सो आस्क व्हाट इज नॉट द आइडियल। अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सो हमेशा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो, है ना, डायरेक्ट आरसी है तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़। थर्ड है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब क्या है कि आंसर जो है इम्प्लाइड है, पैसेज में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, बट पैसेज में जिस चीज की बात हो रही है उस पर अगर आप ध्यान दें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। इसमें अगर स्टूडेंट को डिड्यूस करना होता है, यहाँ पे आपको शर्लॉक होम्स बनना है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से अरेंज करना है कि आप अपना आंसर निकाल सको। ठीक है, ये यूजुअली इसमें अपनी आपको रीजनिंग एबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है। स्टूडेंट मस्ट स्पीक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द पैसेज सेइंग एंड व्हाट ऑल्सो व्हाट इज द पैसेज नॉट सेइंग। तो आपको बेसिकली एज आई सेड, यू हैव टू बी शर्लॉक होम्स, यू हैव टू सी पैसेज किस चीज के बारे में बोल रहा है, किस चीज को डेलिबरेटली अवॉइड कर रहा है, वो सबको नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको यू हैव टू फाइंड द आंसर। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। अगेन यू कैन पॉज हियर एंड रीड अबाउट दिस। आई हैव ऑलरेडी रेड इट, सो आई विल गो ऑन एंड टेल यू व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। बट आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे पॉज करके पूरा पैसेज अच्छे से पढ़िए। इस पैसेज में बेसिकली राइटर क्या बोल रहे हैं कि देखो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो नई टेक्नोलॉजी वो फटाफट फैलती जा रही है, लेकिन उससे ना क्या हो रहा है, कई सारे कल्चर्स के साथ मोरल प्रॉब्लम्स उठ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जे वॉकिंग इज रैंडमली रोड पे चलना। तो ड्राइवरलेस कार है, मान लो ने एग्जाम्पल दिया डबलिन में चल रही है, उसको बनाया किसी अमेरिकन कंपनी ने, कैलिफोर्निया में, उसकी प्रोग्रामिंग किसी इंडियन कंपनी ने हैदराबाद पे कर दिया। अब डबलिन में जो लॉज है, यूएस में जो लॉज है, इंडिया में जो लॉज है, सब अलग अलग है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, इस पे सवाल उठाया गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रैशनल, plausible and practical implication that can be derived from the passage given here। वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन रैशनल मतलब कि सबसे सही, वो क्या बोल रहे हैं कि रैशनल जो पॉसिबल है, प्लॉजिबल मतलब बिल्कुल रियल लाइफ में समझ में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इस चीज के, इस टेक्नोलॉजी के जो हो रहा है, जो दिया है ऊपर के। अब देखोगे आपके पास 5 उन्होंने स्टेटमेंट दिए, 5 स्टेटमेंट आप पढ़ोगे। टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग इकोनॉमिक। अब ये तो जैसे देखो आपने अगर पढ़ा तो ये तो दिया हुआ है, इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इनपिंग्ड ऑन द डोमेन ऑफ स्टेट। ये भी इसके बारे में बात की। पब्लिक पॉलिसी should focus on developing its own supply chain। ठीक है, geopolitics will have to concile with many implications and uncertainties। Now all of this can be made sense, but not this too much global, क्योंकि जो ऑथर है ना वो टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रहा है, पर वो ये नहीं बोल रहा है कि किसके कारण हो रही है या कैसे फैल रही है, वो ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। तो क्लियरली दिस वन इज रॉन्ग। ओके, कमिंग टू इट, यूल सी की जो ऑप्शन है उसमें ए में भी 1 है तो ये नहीं हो सकता, बी में भी 1 है तो ये भी नहीं हो सकता, सी में नहीं है तो ये हो सकता है, डी में भी 1 है तो ये करेक्ट आंसर है सी। यू कैन बेसिकली डिड्यूस फ्रॉम कि एक तो आपको पता है कि ये तो गलत है, बाकी सारे यू आर नॉट श्योर, मेक सेंस। आप बोल सकते हो कि हाँ ये प्लॉजिबल है, तो जो प्लॉजिबल नहीं है फॉर श्योर वो जिसमें अराइवल मान लो कि यहाँ पे ये नहीं होता, 1 नहीं होता, तो यू सी की दोनों में 2 3 कॉमन है, 2 3 5 2 3 5, तो यू गो टू द फोर्थ वन एंड रीएनालाइज द फोर्थ वन। मान लो यहाँ पे सी जो है वो होता है 2 3 5 और डी होता है 2 3 4 5, राइट। इन दैट केस यू वुडंट बी श्योर वेदर इट्स सी और डी। Only difference between C and D is fourth one. So you go back and read the fourth one again and try to understand, but does it fit? If it fits, then if it doesn't fit, then C will be the answer. So इस तरीके से deduce करके you can solve this. And finally the fourth type of question is conclusion based, जिसमें information दी हुई है और आपको conclusion निकालना है। You have to find out what is being said, what is the author coming to. This is where it might be the most tempting to use your own knowledge. ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन बोला जाता है ना, तो हम अपना कंक्लूजन दे देते हैं, क्योंकि हमारे व्यूज इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम टेम्प्ट हो जाते हैं कि ऑफ कोर्स आई नो अबाउट दिस, आई नो आई एम अ वुमन, आई नो अबाउट फेमिनिज्म, राइट, आई डोंट हैव टू, आई नो एग्जैक्टली व्हाट द कंक्लूजन इज। नो, यू माइट एंड माइट नॉट नो अबाउट इट, यू नॉट सपोज्ड टू गिव योर ओपिनियन। यहाँ पर आपको ऑथर किस कंक्लूजन पे आ रहा है इस पे बात करते हैं, ठीक है। So conclusion must be inferred through the information given by the author। ऑथर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालना है, अपना ज्ञान उसमें नहीं डालना, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अगेन यू कैन पॉज हियर
एंड रीड। मैंने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू क्विकली कि इसमें किस बारे में बात जा रही है। तो इस पैसेज में ऑथर क्या बोल रहा है कि देखो ऐसा है, हमारी सिटी जो है वो वल्नरेबल है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, पर क्लाइमेट बहुत जल्दी अफेक्ट करता है और इसका डिजास्टर्स इफेक्ट हो सकते हैं। एंड दैट्स सेइंग कि वी नीड टू मेक आवर सिटीज इन सच अ वे कि वो रेडी हो, क्योंकि सिटीज जो है 65% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी को, और बहुत जरूरी है कि हम मिलकर कुछ प्लानिंग करें, ऐसा इकोसिस्टम बनाए जिससे हम सस्टेनेबली इन्वायरमेंट को देखते देखते ग्रो कर पाए। ये क्वेश्चन है। अब ये तो हो गया पैसेज। क्वेश्चन क्या बचा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस? ये इन्फरेंस वर्ड आया है, दैट मींस यू आर आस्किंग फॉर योर कंक्लूजन विच इज नॉट गिवन इन द पैसेज। तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा इस पैसेज में। वो आप बोल रहे हैं कि जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे हमें बताओ कि क्या सही कंक्लूजन है ऑथर के हिसाब से। ठीक है, कैन बी मेड, अच्छा यहाँ लिखा है कैन बी मेड, बनाया जा सकता है बाय द ऑथर। ओके, and from the above passage, so चार चीजें लिखी हुई है। आज cities need to have well defined administrative setup with sufficient autonomy, of course, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन होने चाहिए autonomous, ताकि वो डिसीजन ले सके। ever increasing population density is a hindrance, ये तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ दिया नहीं ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बस इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबली रिलेटेड इंटरवेंशंस। And the fourth one is public-private partnership mode of development is the viable long-term solution for infrastructure, sustainability and problem. अब इसमें आप देखोगे कहीं पे भी वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, वो बस बता रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसमें देखो अब चारों ये जो स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन आपको बता रहा है कि विच वन इज द मोस्ट रैशनल कंक्लूजन। तो आप देखोगे फर्स्ट वाले में वो बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी की, भाई एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी दो, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे कि ऑटोनॉमी किस तरीके से हेल्प करेगी क्लाइमेट से। दे आर नॉट सेइंग एनीवेयर, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बट इट डजंट कंक्लूड हियर, बिकॉज़ यहाँ पे नहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात नहीं दी गई है। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, ये तो एक स्टेटमेंट है कि हिंड्रेंस है हमारे एफर्ट टू अचीव द सिमिलर। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाने चाहिए। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये आपको क्रक्स नहीं बता पा रहा है इसका, क्योंकि इसमें ऑथर डेफिनेटली सिटी प्लानिंग की बात कर रहा है। Third is to maintain and develop our cities, they need to adopt a sustainability related intervention. Now, this is also true, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है और ऐसे सॉल्यूशन देना चाहिए। C seems like a right answer. Next, D, public private partnership mode for development long term solution. ये भी सही है, टेक्निकली देखा जाए तो ये सही आंसर है। This is what we need. बहुत सारी कंट्रीज में पब्लिक पीपीपी मॉडल्स यूज कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, पर यहाँ पर वो उसकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑथर यहाँ पर कहीं पे भी बात नहीं कर रहा है कि हु शुड टेक, पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए, गवर्नमेंट को, ये बात नहीं कर रहा। वो बस बोल रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए सस्टेनेबल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। सी इज द ओनली मोस्ट एप्रोप्रिएट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन हियर। ऑल दीज आर आल्सो करेक्ट बट जस्ट नॉट व्हाट इज गिवन इन द बैच। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कितना समय लेना चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए। I believe that the best strategy, even if you are very good, reading comprehension में समय मार लगता है। ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज कि आप सारे जो एमसीक्यूज है वो खत्म कर लो और बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जाओ। दैट इज एक्चुअली द बेस्ट स्ट्रेटेजी। सेकेंड, इफ यू फील लाइक इफ यू आर, आई फील लाइक ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। तीसरी बार अगर मैं पैसेज को पढ़ रही हूँ और मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है तो मैं यूजुअली इसको छोड़ देती हूँ। बट दिस इज अगेन माय पर्सनल थिंग, बिकॉज़ आई फील लाइक इफ द थर्ड टाइम द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू मी, आई डोंट बिलीव आई शुड रीड द फोर्थ थिंग, आई मूव ऑन। थर्ड थिंग कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, द बेस्ट विच इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, सबसे पहले आप ये पढ़ो। सबसे पहली चीज पैसेज मत पढ़ो, सबसे पहले आप ये पढ़ो, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया पूछ क्या रहा है, क्या चाहता है आपसे। ठीक है, ये आपको बताएगा कि आपको इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए या ऊपर से कर्सरी पढ़ना चाहिए। ठीक है, वंस यू एस्टैब्लिश दैट, यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ो कर्सरी, देन यू गो बैक हियर, देन यू रीड द क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, एंड देन गो बैक टू रीडिंग दिस पैसेज। दैट इज द फुल फाइनल तरीका हमेशा इसको करने का। आप पहले एस्टैब्लिश करो कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके बाद जाके पैसेज को एक कर्सरी लुक दो, एक बार पढ़ लो,
फिर क्वेश्चंस पे नीचे ऑप्शंस पे आओ, अगर आपको सॉल्यूशन दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वापस जाओ, फिर से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के वापस ऊपर जाओ, एंड देन ट्राई टू गो बैक एंड फोर्थ टिल यू फाइनलाइज ऑल द आंसर। बट मोस्ट केस में ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप सेकेंड टाइम में इस पैसेज को पढ़ के अच्छे से समझ जाओ, दैट विल गिव यू द बेस्ट आउटकम। मतलब सबसे कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का आउटकम आपको इसमें मिलेगा कि सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम में कर्सरी लुक दो, सेकेंड टाइम में इसको अच्छे से पढ़ो, तो दिस शुड गिव यू लाइक द बेस्ट मोस्ट ऑप्टिकल। बट आप 3 बार पढ़ चुके हो पैसेज को और क्वेश्चन को, उसके बाद भी आपको नहीं समझ पा रहा है, मे बी शिफ्ट टू द नेक्स्ट वन। ओके, डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन इट, बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ जिन लोग के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है, दिस इज लाइक लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, सो एंड रही बात पूरे पेपर की, तो जैसा मैंने बताया कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, क्वांटिटेटिव, एंड थर्ड इज आरसी, राइट। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो तो यू मस्ट बी गुड एट लीस्ट 2 ऑफ देम। या तो आप लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो, या तो आपकी रीडिंग आरसी और क्वांट अच्छा हो, या क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग अच्छी हो। यू कैन अफोर्ड टू नॉट बी गुड एट आरसी only if you're really good at the other two. So that basically means कि you can skip it. You should not be skipping RC because कई बार बहुत simple questions आते हैं RC के and they're very easy to solve if you just know the trick. So this is all about the strategy of how to solve reading comprehension. If you have any questions related to this, comment below and I'll try to answer them. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.